Hi everyone. So today we are going to discuss a task 2 question. The question which I'm going to discuss today is a question where students find a lot of problem. They face a lot of problem in this question. Many students do not get ideas on that. So basically I've started this series where I'll be taking up those difficult and confusing questions in which students face problem. So let's begin with the question. So in this question, I'll be telling you how to discuss, how to understand the question, how to generate ideas, how to make notes, and how to write conclusion. So stay tuned. Let's begin. So this is your question for the day. Have a look at that. It is generally observed that almost all high-level jobs are done by men. What I would suggest is do not read full question altogether. Suppose the question is very big, then many students are not able to understand that and they get confused and they think, oh my God, question is very tough. So no, don't read it all together. First read just the first line. It is generally observed that almost all high-level jobs are done by men. Does it mean that the government should encourage a certain percentage of these jobs to be reserved for women? So let's check out first line. All high-level jobs, underline high-level jobs, done by men. That means any high-level job in any organization, mostly, that is done by men. So underline that. Let's check out the next line. Does it mean that the government should encourage a certain percentage of these jobs? These jobs means the jobs which were talked about in the first line, high-level jobs. So be very careful. To be reserved for women. It means to say that high level jobs men के द्वारा किए जाते हैं. तो क्या गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज विमेन के लिए भी रिजर्व कर देना चाहिए इन जॉब्स पर? दीज जॉब्स मीन्स हाई लेवल जॉब्स पर, ताकि विमेन को भी हाई लेवल जॉब्स पर रखा जाए. तो अंडरलाइन द मेन वर्ड्स आर हाई लेवल जॉब्स मेन, गवर्नमेंट encourage a certain percentage, these jobs reserved for women. सो ये सारे वर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है एंड इनके साथ यू हैव टू ट्राई टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. ठीक है. डू यू अग्री और डिसअग्री? नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग डू यू अग्री और डिसअग्री. So let's see. How can you decide right now whether you agree or disagree? Some of the students, what they do, they read the question. Okay, okay, I agree. And they start writing. No, it is a blunder. ये बहुत बड़ी गलती है. कभी कभी पता है क्या होता है, आपने सोचा हाँ अग्री है एंड यू स्टार्ट राइटिंग. बाद में क्या होता है, आपको लगता है ओ आई डोंट हैव पॉइंट्स फॉर अग्री एंड देन यू रियलाइज दैट ऑल ऑफ अ सडन की डिसअग्री के पॉइंट्स आते हैं, लेकिन टाइम तो है नहीं. सो यू मेस इट अप. सो डोंट डू दैट. ठीक है. सो लेट्स सी अब इसमें क्या क्या व्यूज आएंगे. वैसे आपको क्या लगता है, अग्री के पॉइंट्स या डिसअग्री के पॉइंट्स? लेट्स चेक इट आउट. So सबसे पहले let's talk about introduction. In introduction, first of all, you write a general statement. General statement कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, या जनरल स्टेटमेंट नहीं भी आए तो डोंट वरी. क्वेश्चन को रीस्टेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीस्टेट करना मतलब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बट अपनी इंग्लिश, डिफरेंट सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स. लेट मी गिव एन एग्जांपल. पहले जनरल स्टेटमेंट देखते हैं. इट इज कॉमनली सीन दैट at most of the top level positions, men are higher than women. So it is suggested by some people that government should. Now government is repeated, so we can use higher authorities or we can use authorities. Government का synonym. Government or higher authorities should reserve a certain percentage of these jobs. Now these jobs was given in the question also. So हम क्या लिख सकते हैं? Higher authorities should reserve top level positions or should reserve certain percentage of top level positions for females or for the women. अब आपने क्वेश्चन रीस्टेट कर लिया कि हायर अथॉरिटीज शुड रिजर्व अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ हाई लेवल जॉब्स फॉर वुमेन. वहां पे दीज जॉब्स लिखा था, हमने लिख दिया हाई लेवल जॉब्स फॉर वुमेन. आई नाउ व्हाट डू यू थिंक, आई अग्री और डिसअग्री? यहाँ पर आप इसको एक बार पॉज कर सकते हैं. पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि वेदर आई अग्री और डिसअग्री. वैसे इफ यू आस्क मी देन आई डिसअग्री विद द गिवन notion. I do not favor
reservation of women at top level position. They've asked you agree or disagree. So you can very well use I because they have asked your opinion. So here I have written opinion. How will you end the intro? I believe that reserving any position of top level jobs for women is not a wise proposition. That means it's not a wise idea. Many of you write, I agree with the given idea, I disagree with the given idea. Guys, if you want higher one score, then come on, उससे ऊपर आओ, है ना? Exactly अपना standpoint clearly examine को दो. I believe that reserving any position of top level jobs for women is not a wise proposition, is not a wise idea, is not a prudent idea, है ना? तो इस तरह से you should answer. Let's proceed. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? High level jobs question में है. Many students repeat this word again and again. High level jobs, high level jobs, high level jobs, and you lose your marks for vocabulary. तो ऐसा नहीं करना है. तो I have here given you many other words which we can use for high level jobs. High level jobs एक तो है top level jobs. Women should be given reservation in top level team. Reserving seats for women at high position is not a wise idea. Such a system would create frustration in the society. Such a system आप बोल सकते हो इस तरह का system जिसके बारे में हमने पहले बात की है. Such reservation would create disappointment among men. ठीक है? Reserving any position at top level is not a good idea. Reserving any position at top level will prove that women is a weak gender. सच सिस्टम और सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं. एक और है इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल मोटिवेट अदर वुमेन टू वर्क हार्ड एंड secure high level position. Reserving seats for women is certainly a good idea. जिनको लगता है कि yes it is a good idea, they can write this. Reserving seats for women is certainly a great idea. So whenever you are about to write your task 2 question, you should first of all think that what other vocabulary words can be used for that main topic, and that will help you to grab your score for your vocabulary part. So please do this in task 2, do this in task 1 also. तो इस तरह से अब आपका vocab का marks you will get it nicely. Otherwise यही student जाते हैं. I've checked number of writings and I've seen students वही word repeat करते हैं, high level jobs, high level jobs. Okay, so I hope it is clear to you. Let's proceed. So body paragraph 1. This is what I'm going to write. Introducing reservation for women in top level position has plenty of disadvantages. Why I'm writing this? Because I am not in favor of reservation for women. So I'll start my body paragraph list like this. It has plenty of disadvantages because और first line से clear हो जाना चाहिए कि पैरा किस बारे में. So आपकी first line कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जिससे examiner को clear हो जाए कि you are against a particular thing or you are in favor of particular thing. और इस line से बहुत ही clear है कि I am against reservation. Now these are the points. Let's see first one. It will prevent deserving candidates. देखिए हाई पोजीशन पे जो टॉप लेवल पोजीशंस होती हैं उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को लाना चाहिए जो रियली उसे डिजर्व करते हैं, जिनमें कैलिबर है, जिनमें पोटेंशियल है. जिनमें वो कैलिबर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, उनको वहां नहीं रखना चाहिए. और अगर हम रिजर्वेशन रखेंगे तो हो सकता है कि कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है उस टाइम उस पोजीशन के लिए एक मेल कैंडिडेट ज्यादा डिजर्व करता है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से वहां पे एक वुमेन आ जाएगी. So it will prevent deserving candidates, which is not right. Second, it will certainly create frustration and disappointment, particularly among males. देखिए, reservation किसी को पसंद नहीं है. जेंडर इक्वालिटी सब चाहते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी में सिर्फ विमेन नहीं आते, मेल भी आते हैं. मेल भी चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो. सो अगर मेल्स को रिजर्वेशन की वजह से जॉब नहीं मिलेगी और एक विमेन को उस जगह मिलेगी जबकि वो मेल कैंडिडेट डिजर्व करता है, तो इट विल क्रिएट frustration and disappointment. उसके बाद you can also use the word it will create discontent among the people, which will create a chaos in the society. समाज में काफी chaos, काफी confusion, काफी frustration create होगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट कैन ब्रिंग इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट एट हाई पोजीशन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाई लेवल पोजीशन, टॉप लेवल पोजीशन, हायर डेजिग्नेशंस मींस ऐसा पर्सन जिसके पास टैलेंट हो, जिसके पास कैलिबर हो, जिसके पास पोटेंशियल हो, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज हो और वो अपने
जॉब के साथ, अपने पोजीशन के साथ जस्टिस कर पाए। अब अगर हाई पोजीशन पे कोई इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, सो इट विल स्पॉइल द शो। मतलब एक मेल कैंडिडेट है जो बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से एक ऐसा फीमेल कैंडिडेट आ जाता है जो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है, तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और इससे क्या होगा, अगर इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट होगा जिसे अपने जॉब के बारे में ज्यादा कुछ, जो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसमें क्वालिटीज नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हिंडर होगा मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स भी हैजार्डस होंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हैजार्डस मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होंगे, हार्मफुल होंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। लेट्स मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2। कैसे स्टार्ट करेंगे? ऑन दी अदर हैंड अदर्स हैव अ माइंडसेट। ये मेरा माइंडसेट नहीं है, दूसरे लोगों का मानना है। मेरा तो मानना था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट एक साइड ऑफ सोसाइटी ऐसा भी है जो मानता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। सो हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। ऑन द अदर एंड अदर्स हैव अ माइंडसेट दैट, अदर हैव अ माइंडसेट मींस उनकी ऐसी सोच है कि सच अ सिस्टम लेट्स वुमेन वर्क विद कॉन्फिडेंस। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हाई लेवल पोजीशन पर मोस्टली मेन को प्रेफर किया जाता है, इवन इफ फीमेल कैंडिडेट में वो कैलिबर है। रीजन बीइंग कि फीमेल्स हैव अदर हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीमेल्स को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत बार इस वजह फीमेल्स को हॉलीडेज लेनी पड़ती है। और टॉप लेवल पोजीशन ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे यू वांट अ कैंडिडेट हु इज वेरी मच डेडिकेटेड। दो वुमेन डेडिकेटेड तो होते हैं, लेकिन बहुत बार हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उन्हें जॉब और फैमिली के बीच में चूज करना पड़ता है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ उन्हें हॉलीडेज ज्यादा लेनी पड़ती है। तो अगर ये सिस्टम होगा तो women will work with confidence, they will not feel कि they will not be given higher position, so why they should work so hard। उसके बाद इक्वालिटी आएगी। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि विमेन की सैलरी मेल सैलरी से कम होती है, इवन अगर दोनों सेम जॉब पर हैं। तो ये इनइक्वालिटी तो हमारी सोसाइटी में है ही। अभी आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट अमेरिका। अमेरिका में भी ये होता है कि जो इट वाज अ सर्वे रिगार्डिंग डॉक्टर्स, कि फीमेल डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स दोनों सेम पोजीशन पे हैं, फिर भी 25% सैलरी विमेन को कम मिलती है। सो दिस मीन्स दैट कहीं ना कहीं हमारी इस पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक मेल डोमिनेटेड कल्चर है जहाँ मेल्स आर गिवन हायर सैलरी। तो इस तरह का अगर सिस्टम आएगा, रिजर्वेशन सिस्टम आएगा, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में। एंड ऑफ कोर्स इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर अदर वुमेन देखेंगे कि यस, women can women are given higher post, so they will work hard and they will strive hard to get that position. So this is your body paragraph 2। एंड उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। आपको एग्जैक्टली क्लियर था और मुझे भी बहुत क्लियर था कि रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन एट टॉप लेवल जॉब्स में ऑफर गुड अपॉर्चुनिटीज। पहले तो हम क्वेश्चन को ही वापस रीस्टेट करेंगे कि ठीक है, अगर आप सीट्स रिजर्व करते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज तो वुमेन को अच्छी मिलेंगी, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आई यूज हाफ wherein reserving candidates by reserving seats for other gender will certainly have some unfortunate effects। लेकिन अगर हम सीट्स डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वो पोजीशन नहीं देंगे या वो उस पोजीशन पर रिक्रूट नहीं करेंगे, तो इसके अनफॉर्चुनेट इफेक्ट जरूर होंगे, इसके बैड इफेक्ट जरूर होंगे। अब मुझे रिजल्ट देना है फाइनली मैं क्या सोचती हूँ, तो मैंने लिखा हेंस आई थिंक रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट हाई लेवल पोजीशन इज नॉट अ प्रूडेंट आइडिया। प्रूडेंट मीन्स वाइज। तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, पहले अपना स्टैंड, पहले हम बताते हैं कि ठीक है, सीट्स अगर आप रिजर्व करते हैं तो उसके कुछ फायदे तो हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन तो जब मैं कॉन्ट्रास्ट में जा रही हूँ तो मैं कनेक्टिव यूज करूंगी हाउएवर। मतलब मैं पहली वाले पोजीशन के साथ नहीं हूँ, तो मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करूंगी हाउएवर। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अगर हम वो पोजीशन नहीं देते हैं तो इसके बैड इफेक्ट्स होंगे। और फाइनली मैं अपना व्यू पॉइंट फिर से देती हूँ ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, इंट्रो में भी आपको बताना है कि यू आर अगेंस्ट रिजर्वेशन, और कंक्लूजन में भी बताना है यू आर अगेंस्ट रिजर्वेशन। और आपके बॉडी पैराग्राफ से ये पता चलना चाहिए कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं। मेनी स्टूडेंट्स डू वन थिंग, इंट्रो में तो वो लिखते हैं आई पार्शियली अग्री, और कंक्लूजन में लिख देते हैं आई स्ट्रांगली
agree or I strongly disagree with the given statement, then it is absolutely wrong. तो ध्यान रखिए. सो बेसिकली हमें दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी है अपने टास्क 2 में. दैट इज, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए ताकि यू डोंट फेस प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए गड़बड़ हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स डू नॉट डिवाइड द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स और वो एक बार में ही सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, जो मेन टॉपिक है उसके सिनोनिम सोचिए. ऐसा नहीं है कि वो वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स 2-3 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, but if it is used 5-6 times 7 times then you will surely lose your marks for vocabulary which is not right. उसके बाद अपना स्टैंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिए कि what do you exactly want to say. I hope this video will be of great help to you, and soon I'll be coming with some more videos like that. If you liked it, do like it, share it, and comment. Thank you and have a nice day.